Assalamu alaikum. Today our topic is system development life cycle. Basically, it is the models in the field of software engineering that we apply in the practical life. ठीक है, we have to use the software engineering practices to develop a standard quality product. So there are a number of multiple models we have to follow by engineering practices in software engineering. First of them is system development life cycle. It is the set of activities, the sequence of steps that we follow, that a software engineer follow to produce a quantifiable, a best software product which fulfills the user requirements, which are according to the customer needs. ठीक है, basically it is in the domain of software engineering. So I would like to tell the difference between software engineering and computer sciences. First, I say that software engineering is the application of engineering practices with the help of computer science skills to produce a software product. And computer science is the belong to the natural science, okay, which deals with the history of computers, with the development of computers, with the generations of computers. Computer sciences deals with the theoretical portion of computer sciences, practical portion of computer sciences, and it is concerned all the generations, developments, software, peripheral components, hardware engineering. All these things are included in computer science. Basically, it is a general subject. And software engineering is, the purpose of software engineering is to apply the engineering practices, to apply the standard engineering rules with the help of computer science skills in our practical life to produce a quantifiable and best software product which fulfills the customer requirements, customer needs. Okay. Now, what is the definition of software engineering? There I have written the definition. Now let's see it. Okay. Definition: software engineering is concerned with all aspects of software production from the early stage of system specifications through to maintaining the system after implementation. Now I explained. It's concerned with the all aspect of software production कि आपने एक फ्रूटफुल सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है फ्रॉम द अर्ली स्टेज सिस्टम स्पेसिफिकेशन, कि आपको उसकी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन दी जाती है, किसी जगह प्रॉब्लम्स हैं या किसी जगह मैनुअल सिस्टम है, उस मैनुअल सिस्टम के ऊपर देखकर एक कस्टमर की नीड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू प्रोड्यूस अ फ्रूटफुल प्रोडक्ट विच आर अकॉर्डिंग टू द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। कि आपने एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट बनाना है तो आपने उस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस देखनी है, जो करंट मौजूदा सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशन आपने देखनी है, जो प्रपोज सिस्टम जो आप लाना चाह रहे हैं, जो प्रपोज सिस्टम जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, आपने उसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन देखनी है थ्रू टू मेंटेनिंग द सिस्टम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। और उसमें उसके स्टेप्स हैं, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम है, उसकी प्लानिंग है, उसकी डिज़ाइनिंग है, उसकी कोडिंग है, एंड देन जब वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद देन फर्दर उसकी मेंटेनेंस है। तो वी विल स्टडी ऑल दीज स्टेप्स ब्रीफली इन द नेक्स्ट पीरियड। द सेकंड डेफिनेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. See that it is the systematic application. Discipline quantifiable approach mean कि you have to see the financial budgets, you have to see the financial constraints, कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़र को बना के देना चाह रहे हैं या आप जो सॉफ्टवेयर किसी कंपनी को बना के देना चाह रहे हैं या किसी कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो आया दे हैव द रिसोर्सेज टू गेन दिस सॉफ्टवेयर, दे हैव द फाइनेंशियल बजट्स टू अप्लाई दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट सोल्यूशन, ठीक है, यूज़र इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू द करंट यूज़र रिक्वायरमेंट्स एंड दैट सॉफ्टवेयर फुलफिल्स द करंट नीड ऑफ द यूज़र। ये सारी चीज़ें आपने एक सॉफ्टवेयर बनाते वक्त देखनी होती है, यानी यू हैव टू अप्लाई ऑल द इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इन
with the help of computer science skills. कौन सी skills computer sciences? With the help of programming, with the help of analysis. First, with the help of analysis, with the help of designing, with the help of programming, with the help of coding, understanding the basic problem, understanding the user needs, ठीक है, कोडिंग, उन तमाम चीज़ों के बाद जाके आप एक यूज़फुल एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो आप किसी कंपनी को या किसी कस्टमर को डिलीवर करते हैं। और इन तमाम स्टेप्स के बारे में हम ब्रीफ नेक्स्ट देखेंगे। और वेयर इज कंप्यूटर साइंस इज आर डिसिप्लिन दैट इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल प्रोसेस। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस स्किल को यूज़ करती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस बिलोंग टू नेचुरल साइंसेस and software engineering is the field of engineering. In computer sciences, we study about the history of computer, its generations, its hardware, software, component, peripheral devices, and all the activities. In computer science, we study the software as well as hardware. But particular in software engineering, we only we only study the software models. We only study the set of activities. We only study the scientific methods, scientific steps we have to follow to produce a useful and fruitful product according to our system requirement, according to the user requirement, according to the current situation. Clear? These are the steps of system development life cycle. These are the steps of the software development life cycle. I've already told software development life cycle is the problem solving methods used in software engineering for fruitful products. These are the basic steps. I will briefly explain them, then I will study further in detail in next periods. First, defining the problem. In defining the problem, we study the current system problem. We study the current problem of the existing system. Generally, these are manual systems that have problems due to they have problem of data redundancy. They have problem of data lost. They have problems of डाटा कॉपीज़। यानी एक मैनुअल सिस्टम में जितने भी प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, डाटा अपडेटेड नहीं हो रहा होता, डाटा जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा होता, ये सारे प्रॉब्लम एक मैनुअल सिस्टम में चल रहे होते हैं। वी हैव टू डिफाइन दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। नो नेक्स्ट स्टेज इज द प्लानिंग स्टेज। इन प्लानिंग स्टेज आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम स्टडी द एस्टिमेट ऑफ सोर्सेज, पर्सनल कॉस्ट के जो प्रपोज सिस्टम हम लाना चाह रहे हैं उसके रिसोर्सेज कितने, उसमें कितने पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, उसमें मैनेजर, कोड प्रोग्रामर कितने इन्वॉल्व होंगे, और वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द बजट ऑफ द यूज़र या कस्टमर और कंपनी। जो कंपनी आपको बुला रही है अपने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए, क्या आप उसके बजट की उसके मुताबिक आप उसको सॉफ्टवेयर बना के देना चाह रहे हैं, या जिस तरह का वो आपसे चीज़ डिमांड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्लानिंग में देखी जाती हैं कि जो आपके रिसोर्सेज आपको चाहिए उसका एस्टिमेट कितना है, जो पर्सनल उसमें इन्वॉल्व है, और जो उसका जो कॉस्ट इफेक्टिव है, उस हिसाब से ये सारी उसमें फैक्टर्स उसमें स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट इज द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी प्रपोज्ड सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी? एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड सिस्टम कि you as a software engineering team you are going to deliver a fruitful product, fruitful quantifiable software product to the user, ठीक है। तो whether it meet the user requirements, क्या आप जो सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, ठीक है। we have all the possible solutions of that problems and we propose solution, and then the output of feasibility study is the feasibility report। एक feasibility report जनरेट हो जाती है कि यार ये एक नया सिस्टम आ रहा है, ठीक है, ये पुराना सिस्टम रिप्लेस हो जाएगा और नए सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट्स है, उसमें इतना आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, इतना उसमें हार्डवेयर चाहिए, इतने इसमें एक्सपर्ट चाहिए, और जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद कंपनी हैव टू पे दिस एंड दिस, की कंपनी को कितने जो है ना फाइनेंशियली उसको कितना सपोर्ट करनी होगी, और वो सिस्टम कितना यूज़र के रिक्वायरमेंट मुताबिक उसको फुलफिल कर सकता है, ठीक है। इसकी बड़ी एग्जांपल जो द बिग एग्जांपल ऑफ दिस इज द नादरा सिस्टम कि फर्स्ट व्हेन वी सी बियॉन्ड 25 or 30 years we see that there was a Patwari system, we have go to the farm and we have go to अपने photo with blue background to the we give it to the Patwari
कि हम एक पटवारी को देते थे अपनी फ़ोटो बैकग्राउंड, और वो जो हमें कुछ 1-2 महीने बाद एसी साहब से सिग्नेचर करवा के देता था, और वो मैनुअल लिखा होता पढ़ा भी नहीं जाता था। और नादरा में आप देखें कि इन तमाम चीज़ों को, स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हुए एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसमें you have to enter in the Nadra office, you fill the form, you enter the form, you give your photo, ठीक है। नादरा वाले आपको फ़ोटो ले लेते हैं, थंब इम्प्रेशन ले लेते हैं, ठीक है, और सारा डाटा आपका यूनिकली एक जगह पे एक वेरीफाइड और एक वैलिड डाटा होता है। और आफ्टर 1 or 2 weeks दे गिव यू देयर प्रोडक्ट्स, fruitful product in the form of CNIC number, in the form of FRC number, or in the form of any other verified documents, ठीक है। Next, requirement engineering set of activity. Requirement engineering is basically belongs how to gather requirements from the customers, from the end user, from the stakeholders. It's deal with the requirement elicitation, requirements validation, and requirement verifications, ठीक है। We will study in the further periods that how requirement engineering works behind all these scenarios, ठीक है। After the requirement engineering process, we move to the designing phase, ठीक है। डिज़ाइनिंग फेज में जाने से पहले हमें पता होता है कि हमारे पास प्रपोज सिस्टम कौन सा है, हमारे पास प्रपोज सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो हम प्रपोज सोल्यूशन के एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है, उनके फ्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स के, इसकी इनपुट कैसे आ रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, आउटपुट कैसे जनरेट हो रही है, उसके हम फ्लो चार्ट द दैट शोज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिदम, ठीक है। और वी विल स्टडी दीज टॉपिक्स इन द फर्दर लेक्चर इन डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज द कोडिंग, कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिदम इनटू प्रॉपर कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। अदर वी यूज C++ लैंग्वेज, अदर वी यूज जावा लैंग्वेज, विजुअल बेसिक लैंग्वेज। इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट्स के, यूजर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको किसी प्रॉपर लैंग्वेज में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड क्योंकि दिस इज द बेसिकली द FCS क्लास, सो वी विल इम्प्लीमेंट इट इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशंस। एक दफ़ा सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसको सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग टीम है उसको पहले खुद टेस्ट करती है। वी यूज़ टेस्ट डाटा, कि हम टेस्ट डाटा से उसको टेस्ट करते हैं कि ये जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया हम उसको चेक करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, हम उसको चेक करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन है, उसको हम रफ डाटा दे के चेक करते हैं कि आया वो यूज़र रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा है, फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स है वो हम अप्लाई करते हैं, एंड वी विल स्टडी इट इन दी नेक्स्ट फर्दर क्लासेस। नेक्स्ट स्टेप इज द डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, कि once we have once we have prepared our software, we have tested it, verified it, then we implement it on the system, on the customer system, कि हम कस्टमर को जाके वो इम्प्लीमेंट उसके कस्टमर के सिस्टम के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंटेशंस में भी वी हैव मैनी टाइप्स, कि आइदर वी यूज़ पॉली इम्प्लीमेंटेशन, कि हम क्या पॉली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि पुराना सिस्टम उठा के फेंक दिया, नया अपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आइदर वी यूज़ पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, क्या हम क्या करते हैं कि पुराना सिस्टम भी, जो ओल्ड सिस्टम भी चल रहा है और नया सिस्टम भी साथ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों सिस्टम चलते रहें। और आस्ता आस्ता ग्रेजुअली वी रिमूव दी ओल्ड सिस्टम एंड वी इंस्टॉल दी न्यू सिस्टम, यानी कि आस्ता आस्ता हम पुराना सिस्टम ख़त्म करते हैं और नया सिस्टम जो है उसको फुली जो है ना वो ऑपरेशन कर देते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की भी टाइप्स हैं वो हम फर्दर देखेंगे। और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वी गो टू दी मेंटेनेंस स्टेप, कि दैट इफ़ प्रोडक्ट आपका इम्प्लीमेंट हो गया, if there are problems occur in the software, in the hardware, in the program coding, or in the execution of any module, अगर सॉफ्टवेयर की किसी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम्स है तो नेक्स्ट स्टेप है उसकी मेंटेनेंस। उसके लिए आपने देखा होगा कि अक्सर कंपनी जब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देती हैं तो वो आपको 1 साल का, 1-2 साल का उनका एक वारंटी पीरियड होता है, जिसके दौरान अगर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर दैट द सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट फ्रॉम दैट कंपनी डील्स विद दैट system. So these are the steps of system development life cycle, and we will study it in detail in the next periods. These are basic steps that we, the software engineering team, have to follow to develop a fruitful, a quantifiable, a quality wise product for the user or according to the user requirements. Okay ji, thank you.